welcome back. I am Vandana and we are learning Science of Class 3. This is EduRise series by Amit Publishing House and here is your book Innovators Science. Let's start chapter number 2 today, which is Our Feathered Friends. So today we are going to learn about some of our friends जिनके पास feathers होते हैं. Let's see what's here. So let's move on to the intended learning outcomes. So here in this chapter we are going to learn about body parts of a bird, types of feet and claws, feathers of birds, how birds care of their young ones, types of beaks, how do birds fly, and nesting habits. Let's move on to kick off. So birds are wonderful creatures. ये जो birds हैं ये बहुत ही wonderful creatures है, बहुत ही एक भगवान का wonder आप कह सकते हो इसे. Birds are most beautiful animals on the earth और ये earth पे सबसे ज़्यादा beautiful animals में से एक है. There are many colorful birds around us. हमारे आसपास बहुत सारे colorful birds हमें मिलते हैं. Birds have wings and feathers to fly. और ये जो birds हैं इनके पास क्या होते हैं? Wings होते हैं, feathers होते हैं जिसकी मदद से ये आसानी से उड़ पाते हैं. They have beaks and claws. इनके पास beak होता है, इनके पास claws होते हैं. They use their beaks and claws to catch, hold and eat. ये अपने beaks को claws को use करते हैं किस लिए? किसी भी चीज़ को catch करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए, hold करने के लिए और eat करने के लिए. We all love to watch them. हम सबको इन्हें देखना अच्छा लगता है. And human beings got the idea of making aeroplanes from the birds. और ये जो human beings हैं हमें जो ये idea मिला था aeroplane बनाने का वो इन्हीं birds को देख के मिला था. Let's move on to Funtopia. So can you name these birds? यहाँ पे कुछ birds हैं, आपको उनके नाम बताने हैं. First bird, you can say it's an owl. Next is a sparrow. Next one is a crow. And the next bird is a pigeon. So these are some of the birds. Now let's learn about the body parts of a bird. Bird के कौन-कौन से body parts होते हैं? So a bird's body consists of a head, wings, beak, legs, eyes, tail and feathers. So ये सारे जो चीज़ें यहाँ मेंशन की गई हैं ये सारे जो है bird के body parts होते हैं. Birds have lightweight skeletons. ये जो birds हैं इनका जो skeleton है वो काफ़ी ज़्यादा lightweight होता है, हल्का होता है. They have hollow bones filled with air. इनके जो bones हैं वो air से filled रहते हैं. This makes easier for them to fly. और इसी की वजह से ये आसानी से आसमान में उड़ पाते हैं. Birds have powerful muscles called flight muscles. ये जो birds हैं इनके पास powerful muscles होते हैं जिन्हें flight muscles कहा जाता है. And these muscles are responsible for their wing movement. और ये जो muscles हैं ये birds के wing movement के लिए responsible होते हैं. तो आप देख सकते हैं this is the beak, this part is the breast, these are the legs, this is the foot, head, eye, wing, feathers and this part is the tail. So these are the different body parts of a bird. Now let's learn about types of beaks. अलग अलग तरीके के beaks के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं. So birds are toothless animals. इनके पास दांत नहीं होते हमारी तरह. ये क्या है? ये toothless animals हैं. They have beaks to eat their food. इनके पास beak होता है जिसकी मदद से ये अपने खाने को अच्छे से खा पाते हैं. The shape of the bird's beak is suited to the type of food they eat. यहाँ जो bird है उसके जो beak है किस तरीके का खाना वो खाते हैं उसके अकॉर्डिंग बने हुए होते हैं. So सबसे पहले आता है strong, sharp and hooked beaks. So सबसे पहला जो beak है वो ये है, वो काफ़ी ज़्यादा strong होता है, sharp नुकीला होता है और hook shape का होता है, hooked होता है. So like all other
लिविंग थिंग्स, दूसरे लिविंग थिंग्स की तरह बर्ड्स टू नीड फूड टू लिव, बर्ड्स को भी क्या चाहिए, फूड चाहिए रहने के लिए। सम बर्ड्स ईट फ्लैश, कुछ बर्ड्स फ्लैश खाते हैं, वाइल सम ईट ग्रेन्स, लेकिन जो कुछ बर्ड्स हैं वो ग्रेन्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं और फ्रूट्स खाते हैं। बर्ड्स यूज देयर बीक्स एंड क्लॉज टू कैच, होल्ड एंड ईट देयर फूड। ये जो बर्ड्स हैं ये क्या करते हैं, अपने बीक्स को यूज करते हैं, क्लॉज को यूज करते हैं, किस काम में, कैच करने में, होल्ड करने में और ईट करने में, अपने खाने को, मीन्स खाने को वो पकड़ते हैं, उसे कैच करते हैं और उसे खाते हैं, इन दोनों चीजों की मदद से। They either swallow the food whole or use their beak to break or tear the food. ये क्या करते हैं, अपने बीक को, अपने चोंच को यूज करते हैं, या तो खाने को पूरी तरह से स्वैलो कर जाते हैं या फिर अपनी चोंच की मदद से ये थोड़ा थोड़ा उस फूड को तोड़ते हैं छोटे छोटे पीसेस में, बिफोर दे स्वैलो दम। सो उसे जो है गटकने से पहले ये उन्हें छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं और फिर खाते हैं। सो ये दोनों तरीके हैं फूड को खाने के। The shape of a bird's beak depends on the kind of food it eats. जो शेप है बर्ड के बीक का वो डिपेंड करता है किस तरीके का खाना वो बर्ड खाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एन ईगल, ईगल का बीक कैसा है, हुक शेप, फिर आता है हमारा वल्चर, फिर है हमारा हॉक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रिमेंबर दिस। सो सम बर्ड्स यूज देयर फेदर्स टू शो ऑफ, कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो अपने फेदर्स को सिर्फ शो ऑफ करने के लिए यूज करती है। पिकॉक डज एग्जैक्टली दिस, और ऐसा ही एक बर्ड है पिकॉक जो ऐसा कुछ करता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू जस्ट अ हेड्स अप। सो अ बीक इज आल्सो कॉल्ड बिल और रोस्ट्रम, बीक को हम बिल या फिर रोस्ट्रम कहते हैं। नेक्स्ट कम्स स्मॉल हार्ड एंड पॉइंटेड बीक, ये दूसरे तरीके का बीक है जो काफी ज्यादा छोटा होता है साइज में, हार्ड होता है लेकिन पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है। सो बर्ड्स सच एज pigeons, finches, peacocks and sparrows eat grains and cracked nuts. अब ये जो बर्ड्स हैं ये क्या करते हैं, ग्रेन्स भी खाते हैं और नट्स को भी क्रैक करते हैं। दे हैव शॉर्ट, हार्ड, हार्नी एंड पॉइंटेड बीक्स, इनके जो बीक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, हार्ड होते हैं, हॉर्नी होते हैं और पॉइंटेड होते हैं। टू क्रैक ओपन ग्रेन्स एंड सीड्स, जिसकी मदद से ग्रेन और सीड को क्रैक कर सकते हैं। ये यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ पिजन एंड अ स्पैरो, और इनके जो बीक है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कम्स कर्व्ड बीक। सो पैरट्स, हॉर्नबिल्स, पैराकीट्स, कोकटोस एक्सेट्रा हैव कर्व्ड बीक्स। ये कुछ बर्ड्स हैं, ये क्या करते हैं, इनके पास जो है आपको कर्व्ड बीक्स मिलेंगे। द कर्व्ड बीक्स ऑफ द पैरट हेल्प्स इट टू क्रैक नट्स एंड हार्ड फ्रूट्स। ये जो कर्व्ड बीक है पैरट का, इसकी मदद से क्या करता है, नट्स को क्रैक करता है और हार्ड फ्रूट जो है उसको भी ये तोड़ लेता है, क्रैक करता है। इट ऑल्सो यूजेज इट्स बीक टू क्लाइंब अप द ट्री, और ये अपने बीक की मदद से ट्री पे भी चढ़ता है। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं एक पैरट की और पैराकीट की, और इनके बीक को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट let's move on to remember this. So ostriches have the largest eyes in any mammal on island. ये जो ostriches हैं इनकी आंखें सबसे बड़ी होती हैं, जितने भी mammals हैं पूरी धरती पे उन सब में सबसे बड़े जो eyes हैं वो ostriches के होते हैं। Next comes strong and chisel shaped beak. ये अलग तरीके के बीक हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और चिसल के शेप के होते हैं, बीक्स बहुत ही ज़्यादा नुकीले होते हैं। सम बर्ड्स लाइक वुडपेकर्स हैव अ चिसल शेप्ड स्ट्रांग एंड हार्ड बीक। कुछ बर्ड्स जैसे कि वुडपेकर हो गया, इसके जो बीक हैं वो चिसल के शेप के होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और हार्ड होते हैं। सच बीक हेल्प्स देम टू मेक होल्स इन द बार्क ऑफ द ट्रीज, और ये जो बीक्स हैं ये इन्हें हेल्प करते हैं जो पेड़ का जो तना होता है, जो बार्क होता है, उसमें होल करने में। दे कैच इंसेक्ट्स फ्रॉम दीज होल्स एंड ईट देम। अब ये बर्ड्स क्या करते हैं, इन होल्स में से इंसेक्ट को पकड़ते हैं और उन्हें खा लेते हैं। तो ये थे कुछ अलग तरीके के बीक।
Now let's move on to twisting time. So chisel is a tool. Chisel क्या होता है? एक tool होता है, ऐसा दिखता है वो, जो कि फ्लैट होता है, उसमें एक ब्लेड टाइप का होता है, विथ अ कटिंग एज. उसका जो एज है, जो कोना है, वो कटिंग होता है. And this is used by the person who makes furniture at your home. So ये जो है एक ऐसा पर्सन यूज करता है जो हमारे घरों में फर्नीचर बनाता है. कौन है वो पर्सन? You have to name it. So it is the carpenter. Next comes the long and pointed beak. So some birds like hummingbirds and sunbirds also have long and pointed beaks. कुछ birds जैसे कि hummingbird हो गया या sunbird हो गया, इनके पास जो है आप देखेंगे तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा लंबी और पॉइंटेड बीक होती है, जो किस काम आती है? नेक्टर को सक करने के काम आती है फ्लावर से. They put their beaks inside the flower. ये फ्लावर के अंदर अपने बीक को डालते हैं एंड वहां से ये आसानी से नेक्टर को सक कर लेते हैं. नेक्स्ट कम्स broad and flat beak. So some birds like ducks have broad and flat beak. कुछ birds जैसे कि duck की अगर हम बात करें तो इसके जो beak हैं वो काफ़ी ज़्यादा broad means चौड़े होते हैं और इसके जो beak है वो flat मिलेंगे हमें. These beaks have holes on either sides. ये जो beak है इसके आप दोनों तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको holes मिलेंगे. Such holes are called strainers. और ऐसे holes को हम strainers कहते हैं, छन्नी कहते हैं. They are used to scoop the muddy water. और ये जो strainers हैं ये किस काम आते हैं? muddy water को scoop करने के लिए. The mud and the water flow out through holes. अब ये जो holes है इनमें से जो mud और water है ये बाहर निकल जाता है दोनों साइड से. And the little plants and insects from the muddy water stay inside. और जो छोटे छोटे plants या फिर insects होते हैं उस muddy water में से वो इसके beak के अंदर रह जाते हैं. And serve as food for the duck. और फिर ये duck के लिए as a food काम करते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं duck and spoonbill जिनके जो beak है वो broad और flat होते हैं. Now let's move on to just a heads up. So birds like sunbird and hummingbird which feed on the nectar of flowers help in pollination. So ये जो birds हैं hummingbird और sunbird ये किस काम आते हैं? ये जो है nectar को तो खाते ही हैं फ्लावर के, लेकिन साथ के साथ ये pollination में भी help करते हैं. मीन्स जो pollen grains है वो इनकी बॉडी में चिपक जाता है और फिर वो दूसरे फ्लावर तक पहुंच जाता है. तो इस तरीके से पॉलिनेशन में भी ये बर्ड्स हेल्प करते हैं. नेक्स्ट कम्स शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक्स. अब जो है एक दूसरे तरीके की बर्ड है जिसके जो बीक है वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं लेकिन चौड़े होते हैं. तो सम बर्ड्स लाइक swallows हैव अ शॉर्ट बट ब्रॉड बीक. ये जो swallows है इनके जो बीक होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं लेकिन ब्रॉड होते हैं. Their mouth is sticky from the inside. इनका जो माउथ है वो अंदर से स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है. When they fly, they keep their mouth open and insects get stuck in their mouth. और जब ये उड़ते हैं तो ये क्या करते हैं? अपना मुंह खोल के उड़ते हैं. तो जो भी इंसेक्ट वगैरह जो भी आसमान में या हवा में उड़ रहे होते हैं वो सारे इनके माउथ के अंदर जाके चिपक जाते हैं. सो इस तरीके से ये अपने खाने को ढूंढ लेते हैं. Birds use their feet and claws to catch, hold and eat their prey. Birds क्या करते हैं? अपने feet को use करते हैं, अपने claws को use करते हैं कैच करने के लिए, होल्ड करने के लिए और खाने के लिए अपने prey को. They also help them to protect themselves from their enemies. ये जो चीज़ें हैं, ये जो feet है या जो claws हैं, ये इन birds की मदद करते हैं किस चीज़ में? अपने आप को enemy से बचाने में. Let's understand the feet and claws of various birds. तो चलिए पढ़ते हैं अलग अलग birds के feet और claws के बारे में. Before that, let's move on to just a heads up. So birds do not have sweat glands. जो birds हैं उनके पास आपको sweat glands नहीं मिलेंगे. So now let's move on to types of feet and claws. So here first comes the flesh-eating birds. So birds like eagles, hawks
and owls have sharp, strong and curved claws called talons. So ये जो birds है जैसे eagle हो गया, hawk हो गया या फिर owl हो गया, इनके जो claws हैं, जो पंजे होते हैं वो कैसे होते हैं? काफ़ी ज़्यादा sharp होते हैं, strong होते हैं और curved होते हैं and इन्हें हम talons भी कहते हैं. They use these talons to catch their prey such as rats and mice. अब ये क्या करते हैं? इन talons को यूज़ करते हैं अपने prey को पकड़ने के लिए, जैसे कि rats हो गए या फिर mice हो गया. यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं claw of eagle. Next comes perching birds. So sparrow, robins, crows and mynas have 4 toes, 3 front pointing toes. So ये जो birds हैं जैसे sparrow हो गया, robins हो गए, crows हो गए या फिर mynas हो गए, इनके पास आपको मिलेंगे 4 toes, 3 जो है आगे की तरफ होते हैं और 1 पीछे की तरफ. The 4 toes help them to grip branches. अब ये जो 4 toes हैं ये क्या करते हैं? ये जो 3 आगे के और 1 पीछे का है ये ब्रांच को बहुत आसानी से पकड़ने में हेल्प करते हैं. It also helps them to sleep और जिसकी मदद से ये आसानी से ब्रांच को पकड़ पाते हैं और सो भी पाते हैं. Next comes scratching birds. So hens have 3 toes in the front and 1 toe at the back. So ये जो hens हैं इनके जो है आपको 3 toes आगे की तरफ, 1 toe पीछे की तरफ दिखेगा. They have sharp claws that help them scratch and dig the ground. इनके जो क्लॉज हैं वो काफ़ी ज़्यादा शार्प मिलेंगे जिसकी मदद से आसानी से ग्राउंड को स्क्रैच कर पाते हैं, डिग कर पाते हैं एंड इंसेक्ट्स, वर्म्स या फिर सीड्स को आसानी से ढूंढ पाते हैं. तो आप देख सकते हैं ये हैन और ये है उसका क्लॉ. नेक्स्ट कम्स क्लाइंबिंग बर्ड्स. सो वुडपेकर्स हैव 2 toes. वुडपेकर्स जो है उनके जो है 2 toes होते हैं which point upwards and 2 which point downwards. So woodpeckers जो है उनके 2 toes आगे की तरफ जो है इशारा करते हैं और 2 पीछे की तरफ होते हैं. This gives them a grip on tree trunks as they climb. तो जैसे से ट्री के ट्रंक पे चढ़ते हैं तो ये जो टोज हैं क्या करते हैं इसे जो है ग्रिप देते हैं. सो वुडपेकर इसकी वजह से जो बहुत आसानी से ट्री को ग्रैब कर सकता है. Let's move on to remember this. So the strongest bird in the world is the black wheatear, which lives on the cliffs and rocky slopes of Liberia and western northern Africa. So ये जो है सबसे ज़्यादा strongest bird है पूरे world में. Next comes swimming birds. So ducks and swans swim in the water. ये जो ducks हैं या जो swan होते हैं ये पानी में आराम से तैरते हैं. They have webbed feet. So यहाँ पे जो इनके जो ये claws हैं इनके बीच में आप देख सकते हैं ऐसे जो है बना हुआ होता है, इसे हम कहते हैं webbed feet. So इनके पास क्या होते हैं? webbed feet होते हैं. They have 3 toes in front and 1 at the back. 3 toes आगे की तरफ होते हैं, एक पीछे की तरफ होता है. They help them to push back the water. अब ये जो toes हैं ये क्या करते हैं? पानी को पीछे की तरफ ढकेलने में हेल्प करते हैं जब ये स्विम कर रहे होते हैं. तो ये हमारा डक और ये उसका टो. नाउ लेट्स मूव ऑन टू wading birds. सो wading birds have long legs. ये जो wading birds इनके legs काफ़ी long होते हैं with spread out toes that help them move in the water. इनके जो toes हैं वो काफ़ी ज़्यादा spread होते हैं जिसकी वजह से पानी में आसानी से चल पाते हैं. They wade through muddy water. ये जो है muddy water से wade करते हैं. Cranes, storks, herons, etc. are wading birds. ये जो है कुछ wading birds हैं. They catch fish and other insects. ये fish को और दूसरे insects को पकड़ते हैं. कहाँ से? Water से या फिर muddy water से. And here you can see the picture of crane. Next, let's learn how do birds fly. Birds fly कैसे कर पाती हैं? So a bird lifts its body up in the air by flapping the wings. So bird क्या करती है? अपने wings को flap करके धीरे धीरे अपने body को ऊपर air में ले जाती है. There are 2 ways in which birds move their wings. अब 2 तरीके दिए गए हैं जिन तरीकों की वजह से क्या करते हैं birds move कर पाते हैं.
पहला आता है डाउन स्ट्रोक एंड दूसरा है अप स्ट्रोक। डाउन स्ट्रोक क्या है? ड्यूरिंग द डाउन स्ट्रोक, जब डाउन स्ट्रोक होता है, द विंग्स मूव डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड। जो विंग्स हैं वो नीचे की तरफ जाते हैं और आगे की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउन स्ट्रोक। नेक्स्ट आता है अप स्ट्रोक। अब इसमें क्या होता है? ड्यूरिंग द अप स्ट्रोक द विंग्स मूव अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड। विंग जो है ऊपर की तरफ जाते हैं और पीछे की तरफ जाते हैं। तो ये है अप स्ट्रोक। सो व्हेन अ बर्ड लैंड, जैसे ही बर्ड लैंड करती है, इट स्प्रेड आउट इट्स विंग्स, वो अपने विंग्स को स्प्रेड करती है एंड ग्लाइड करती है बहुत ही स्मूथली विदाउट मच फ्लैपिंग, बिना बार बार पंखों को फ्लैप किए वो आसानी से ग्लाइड करती है एयर में। नेक्स्ट इज फेदर्स ऑफ बर्ड्स। कौन कौन से फेदर्स होते हैं बर्ड के? लेट्स सी। सो फेदर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बर्ड्स बॉडी। बर्ड की बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं ये। दे हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई, ये बर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। फेदर्स ऑल्सो प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ अ बर्ड। ये जो फेदर्स हैं ये बर्ड की बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अलग अलग वेदर कंडीशन से। बर्ड्स फेदर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये जो बर्ड के जो फेदर्स होते हैं वो किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेदर्स सर्व डिफरेंट पर्पसेस। अलग अलग तरीके के जो फेदर्स हैं वो अलग अलग पर्पसेस को पूरा करते हैं। फेदर्स कवर अ बर्ड्स बॉडी, और ये जो फेदर्स है क्या करते हैं? बर्ड की बॉडी को पूरी तरह से ढक देते हैं। सो द सॉफ्ट एंड फ्लफी फेदर्स कीप देम वार्म। ये जो सॉफ्ट से फ्लफी से फेदर होते हैं ये बर्ड को गर्म रखते हैं। एंड दीज फेदर्स आर कॉल्ड डाउन फेदर्स, और इन फेदर्स को हम डाउन फेदर्स कहते हैं। द लार्ज एंड द फ्लैट फेदर्स अटैच्ड टू द विंग्स एंड टेल्स आर कॉल्ड फ्लाइट फेदर्स। और जो बड़े बड़े फेदर्स होते हैं जो विंग से अटैच होते हैं, टेल से अटैच होते हैं, उन्हें हम फ्लाइट फेदर्स कहते हैं। और ये जो है बर्ड्स को उड़ने में मदद करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है फ्लाइट फेदर्स जो उड़ने में मदद करते हैं। ये हैं डाउन फेदर्स जो बॉडी को गर्म रखते हैं। नेक्स्ट इज नेस्टिंग हैबिट्स। अब कैसे कैसे नेस्ट बनाते हैं बर्ड्स, लेट्स रीड। सो बर्ड ऑल्सो नीड्स अ शेल्टर टू लिव इन। बर्ड्स को भी हमारी तरह घर चाहिए रहने के लिए। Its shelter is called a nest, और इनका जो घर है उसे हम नेस्ट कहते हैं। Birds build nest to lay eggs. Birds क्या करते हैं? नेस्ट को बनाते हैं किस लिए? अंडे देने के लिए। The nests are built at safe places. ये जो नेस्ट है वो बहुत ही सेफ जगह पे बनाए जाते हैं। The nest protects them and their eggs from their enemies. ये जो नेस्ट है ये क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं इन्हें और इनके अंडों को। कहाँ से? किससे? एनिमीज से और बैड वेदर से। सो बर्ड्स यूज डिफरेंट मटेरियल्स लाइक ड्राई लीव्स, twigs, wool, feathers, threads, cotton, etc. बर्ड्स ये सारे मटेरियल यूज करते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे मटेरियल यूज करते हैं अपना घर बनाने के लिए, नेस्ट बनाने के लिए, टू बिल्ड देयर होम्स। डिफरेंट बर्ड्स मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेस्ट। अब जैसे इनकी ईटिंग हैबिट्स अलग अलग हैं, इनके क्लॉज अलग अलग है, वैसे इनके जो घर हैं वो भी अलग अलग होते हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग बर्ड अपना घर बनाती है। पहला आता है द कुकू। सो ये क्या है? ये एक ऐसी बर्ड है जो क्या करती है? दैट डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट। ये अपना खुद का घर नहीं बनाती है। ये क्या करती है? ये अपने अंडों को क्रो या फिर दूसरे बर्ड के नेस्ट में डाल देती है, मीन्स वहां पे ले करती है। सो इट लेज इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ अ क्रो और अदर बर्ड्स। नाउ नेक्स्ट इज बर्ड्स लाइक कीवी, puffins and ostrich make their nest on the ground and not on trees. अब ये जो कुछ बर्ड्स है ये क्या करते हैं? ये अपना घर जो है जमीन पे बनाते हैं, ट्री पे नहीं बनाते। नेक्स्ट, अ स्पैरो बिल्ड्स इट्स नेस्ट ऑन द ट्री। स्पैरो जो होती है वो अपना घर पेड़ पे बनाती है। टेलर बर्ड स्टिचेस लीव्स टू मेक इट्स नेस्ट।
टेलर बर्ड क्या करती है, दो पत्तों को जो है आपस में सिल देती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, और फिर वो अपना घर बनाती है। अ पार्ट्रिज बर्ड्स मेक्स इट्स नेस्ट ऑन द ग्राउंड। ये जो पार्ट्रिज बर्ड है ये भी अपना घर जो है ग्राउंड पे बनाती है। अ वीवर बर्ड मेक्स इट्स नेस्ट यूजिंग ट्विग्स, ग्रास, वोल एक्सेट्रा। सो जो वीवर बर्ड है वो क्या करती है, अपने घर को इन सारे मटेरियल से बनाती है। द वुडपेकर pegs into tree trunk and makes a hole to build a nest in a beautiful manner. So जो वुडपेकर वो क्या करता है, पेड़ का जो तना है, जो ट्रंक है, उसमें जो है पेग करके अपना घर उसके अंदर बनाता है बहुत ही सुंदर तरीके से। Let's move on to just a heads up. So the study of birds is known as ornithology. So birds की जो स्टडी है उसे हम ornithology कहते हैं। Let's move on to how birds care for their young ones. अब ये जो birds हैं वो अपने नेस्ट में अपने एग्स देती हैं, कैसे वो अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं, ये अब हम पढ़ने वाले हैं। So bird parents have their own ways of looking after their young ones. ये जो bird parents हैं वो क्या करते हैं, उनका खुद का एक तरीका होता है अपने छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखने का। The mother bird lays eggs in the nest. जो मदर बर्ड है वो क्या करती है, एग्स को जो है नेस्ट में देती है, एंड कीप्स देम वार्म, उन्हें वार्म रखती है बाय सिटिंग ऑन देम, उस पर बैठ के। द फादर बर्ड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर एनिमीज। जो फादर बर्ड है वो इन अंडों को उनके जो है दुश्मनों से बचाता है। वंस द बेबी बर्ड्स हैच फ्रॉम द एग्स, जैसे ही बेबी बर्ड एग से बाहर निकलते हैं, दे फीड देम एंड कीप देम वार्म। तो मदर एंड फादर बर्ड क्या करते हैं, उन बच्चों को खाना खिलाते हैं और उनको वार्म रखते हैं। बेबी बर्ड्स आर वीक एंड फेदरलेस। ये जो बेबी बर्ड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, इनके जो है पंख भी नहीं आए होते हैं, इसलिए ये फेदरलेस होते हैं। बर्ड पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर बेबीज टिल दे गेट स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइंड फूड एंड फ्लाई ऑन देयर ओन। ये जो बेबी बर्ड के जो पेरेंट्स हैं ये क्या करते हैं, अपनी बेबीज का तब तक ध्यान रखते हैं जब तक ये जो बर्ड्स हैं ये इतनी ताकतवर नहीं हो जाती कि वो अपना खाना खुद से ढूंढ पाए या फिर उड़ पाए, तो तब तक ये पेरेंट्स अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मेक टीचिंग फन। सो हियर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू अ गार्डन और स्कूल प्लेग्राउंड एंड ऑब्जर्व द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स। अलग अलग तरीके के जो भी आपको बर्ड्स दिख रहे हैं उन्हें देखना है। आपको क्या करना है, जो भी फॉलन फेदर्स हैं इन बर्ड्स के उनको उठाना है, गैदर करना है एंड गेस करना है कि कौन सी बर्ड के ये फेदर्स हैं। आपको जो है यू हैव टू नेवर टच अ नेस्ट। आपको नेस्ट को कभी भी टच नहीं करना है क्योंकि उसमें एग्स हो सकते हैं, चिक्स हो सकते हैं, एंड यू हैव टू कलेक्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बर्ड्स। और बर्ड्स के बारे में आपको जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट मिले वो सारी चीज़ें आपको इकट्ठी करनी है। Now let's move on to word 8. So hollow means an empty space. Swallow, the food go down your throat to your stomach without chewing. किसी चीज़ को गटक लेना। Broad means wide, चौड़ा. Talon is sharp, curved claws of flesh-eating birds. Hatching is the coming out of a young one from an egg. Let's move on to quick review. So birds are the only animals which have wings and feathers. Birds सिर्फ एक ऐसे एनिमल है जिनके पास आपको wings और feathers दोनों मिलेंगे। Birds do not have teeth to eat food. Birds के पास teeth नहीं होता जिससे वो खाना खा पाए। Birds have hollow bones, flight muscles and wings. Birds के पास जो bones हैं वो काफ़ी ज़्यादा hollow मिलते हैं, इनके muscles flight muscles हैं, and इनके पास आपको wings मिलेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स हैव डिफरेंट बीक्स एंड क्लॉज। अलग अलग तरीके के बर्ड्स के पास आपको अलग अलग तरीके के बीक्स और क्लॉज मिलेंगे। द बर्ड्स बॉडी इज कवर्ड विथ फेदर्स। बर्ड की जो बॉडी है वो फेदर से ढकी हुई होती है। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स। बर्ड जो है नेस्ट को बनाते हैं एग्स को ले करने के लिए। फेदर्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बर्ड्स बॉडी। ये जो फेदर्स हैं बर्ड की बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। एंड बर्ड्स लाइक कीवी, पफिन्स एंड ऑस्ट्रिच
make their nest on the ground. ये जो birds हैं ये अपने जो nest है उसे ground पे बनाते हैं. The father bird protects the young ones from their enemies. जो father bird है वो क्या करता है अपने young ones को enemies से बचाता है. Now let's move on to book exercise, which is put on your thinking cap. Here A exercise is darken the correct option in OMR sheet. So let's do this exercise. Here the first one is birds have beaks that help them to eat, hear, hop, swim. Correct answer is eat. Second, this bird has a strong, short and hard beak. Pigeon, vulture, duck, ostrich. Pigeon is the correct answer. Third one, the dash has webbed feet. Duck, eagle, woodpecker, hawk. Correct answer is duck. Fourth one, dash birds have long legs that help them move in the water. Climbing, perching, wading, swimming. So wading is the correct answer. Now the fifth one is, which of the following is a scratching bird? Sparrow, vulture, hen, hawk. So hen is the correct answer. So like this you have to mark it. Now let's quickly move on to B exercise, which is fill in the blanks with correct words from the box. So from the box we have to choose the words and fill it here. So here the first one is birds have lightweight skeletons. Second, ducks have broad and flat beaks. Third one, sparrow and miners have 4 toes to grip branches. Fourth, duck's feet help it to push back the water while swimming. And the fifth one is there are 2 ways in which birds move their wings. Let's move on to C exercise, which is take the correct statement and cross the wrong ones. First one is feet and claws are very useful for birds. Yes, true. Second, a partridge bird makes its nest on the tree barks. False. Third, the cuckoo lays its eggs in the nest of a crow. Yes, true. Fourth one, the nests are built at safer places. Yes, true. And the fifth one is birds' feathers are made up of which bits? This one is false. It's made up of proteins. Let's move on to the next exercise, which is D exercise. Answer the following questions. So here the first one is, how do birds fly in the sky? So birds fly with the help of the feathers that they have. Flight feathers help them to fly. Now, second one, why do ducks have flat and broad beaks? So ducks have flat and broad beaks because here there are strainers. They act as strainers which help them to clear off the muddy water, and the prey means the insects or the plants remain inside their beaks. Now, let's move on to third one. Why does a bird need a nest? A bird needs nest to live in and to protect themselves from their enemies. Fourth one, name 5 materials used by birds to make their nest. So, the materials used by birds to make the nest are leaves, twigs, wool, feathers and many more you can add on here. Now, fifth one, define the term downstroke and upstroke. So, downstroke means the birds move their feathers downwards and forward, and similarly upstroke means the bird move their feathers upward and backward. So, these are the answers that you can write here. And with this we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.